السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی۔ محترم حضرات، ہم جس عنوان پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے کہ مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ کیوں۔ اس وقت مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے بھی ہدایت کی گئی ہے کہ جمعہ میں اس قسم کی باتیں کی جائیں، اور وقت کی ضرورت بھی ہے کہ اس ٹاپک پر بات کی جائے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور مسئلے کا حل کیا ہے۔ ہم دونوں باتیں کریں گے انشاءاللہ کہ گڑبڑی کہاں ہو رہی ہے اور مسئلے کا حل کیا ہے۔ اس سلسلے میں کافی لوگ پریشان ہیں، اور نوجوان ہمارے جو بھائی ہیں وہ اور زیادہ پریشان ہیں، نوجوان لڑکے، کہ کیا ہو رہا ہے مسلم سوسائٹی میں کہ مسلم لڑکیاں جو ہے وہ غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں اور شادی کر لیتی ہیں۔ نکاح تو ہم نہیں کہتے، نہ نکاح ہوتا ہے شرعی لحاظ سے۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اور اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، یہ ہم دونوں باتیں انشاءاللہ کریں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ اے عورتوں اپنے گھروں کو لازم پکڑو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جس طریقے سے جاہلیت کے زمانے میں، یعنی جب تم لوگ ایمان والی نہیں تھیں، تو اس وقت جس طریقے سے تمہارے اندر غلط باتیں تھیں ان کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسلمان عورت کی ذمہ داری ہے کہ زیادہ سے زیادہ گھر میں رہے۔ یہ جو وجہ ہے، پہلی وجہ ایک ایک پوائنٹ پر بات کریں گے، اور تاکہ آپ اس بات کو دوسرے کو بھی سمجھا سکیں اور بتا سکیں۔ پہلی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں میں دینی تعلیم کا نہ ہونا ہے۔ حضرت ام سلیم، مکے کی بات ہے یہ، ام سلیم کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں، تو ابو طلحہ نام کے ایک صاحب نے رشتہ بھیجا، اور ابو طلحہ بہت اچھے آدمی تھے، اور اس وقت تک ابھی اسلام اور کافر میں شادیاں ہو جایا کرتی تھی، منع نہیں تھی، یہ اس وقت کی بات ہے۔ تو انہوں نے رشتہ بھیجا، انہوں نے کہا کہ آپ کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کے رشتے کو انکار کیا جائے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو ملاپ نہیں کھا رہی ہے، وہ بھی سماجی لحاظ سے، ابھی اسلامی لحاظ سے نہیں، سماجی لحاظ سے، وہ یہ ہے کہ تم کافر ہو اور ہم مسلمان ہیں، لہذا کافر اور مسلمان کی شادی یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ یہ بات انہوں نے کیوں کہی؟ کیونکہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں سمجھائی تھیں، جو دین بتایا تھا، وہ دین ان کو معلوم تھا۔ اس روایت کو مسند احمد نے نقل کیا، اس روایت کو نسائی نے نقل کیا، اور بھی تحقیق کی جائے گی تو اور کتابوں میں، اور روایت جو ہے وہ ایک دم صحیح ہے۔ اب اس میں جو دینی تعلیم کی بات ہے کہ دینی تعلیم، ہم کو شوق ہے، بہت شوق ہے ہم کو کہ ہماری بچی خوب ہائیلی کوالیفائڈ ہو، خوب تعلیم یافتہ ہو۔ انگریزی بولنے پر ہم اگر انگریزی بولنے لگے تو ہمیں اور خوشی ہوتی ہے، اور اچھی تعلیم حاصل کر لیتی ہے تو اور خوشی ہوتی ہے، لیکن اسی والدین نے کبھی اس بات کی فکر نہیں کی ہے کہ ہماری بچی دین کو جان لے۔ بہت زیادہ جب ہم لوگوں کے رشتے آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کی لڑکی پڑھی لکھی ہے، تو کہتے ہیں ہاں عربی جانتی ہے۔ عربی جاننے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم ناظرہ سے
पड़ती है। ये एक कॉमन जुमला है जो हम अपनी सोसाइटी और समाज में बोलते रहते हैं। तो बुनियादी तौर पे जो सबसे पहली चीज़ है कि अगर हमारी लड़कियों को इल्म दीन सिखाया जाए तो मसले का हल हो सकता है। उनको ये बात मालूम हो सकती है, उसकी कबाहत मालूम हो सकती है, गुनाह मालूम हो सकता है कि कोई भी मुस्लिम लड़की किसी भी गैर के साथ शादी करती है तो हर मर्तबा जब आपस में मिलते हैं तो ज़िना होता है, बच्चा जो पैदा होता है वो हरामी होता है, लिहाजा एक बड़ा गुनाह है। लेकिन ये बताएगा कौन? ये बताएगा दीन। ब्रैकेट की एक बात और बताते चलें कि ये भी एक बहुत बड़ा सान्या है हमारे साथ कि हमने औरतों की तालीम का कोई इंतज़ाम माकूल अब तक किया ही नहीं है। ये तो तबलीगी जमात को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे कि उन्होंने औरतों की जमात भी निकालने की फ़िक्र की, उसके भी लोग पीछे पड़ गए, फतवेबाजियाँ हुई। औरत बाज़ार जाती है, कोई हराम का फतवा नहीं है कि औरत का बाज़ार जाना हराम है, और दे भी नहीं सकते हैं। औरत खेत में काम करती है, कोई हराम का फतवा नहीं है। आप अपने अतराफ गांव में देख लीजिए, कितनी औरतें हैं, मुस्लिम औरतें हैं जो बकरी चराती हैं, खेत में काम करती हैं। हराम का फतवा, मकरूह तहरीमी का फतवा किसका दिया गया है कि औरत का मस्जिद में आना मकरूह तहरीमी है। मकरूह तहरीमी का मतलब करीब करीब हराम के है। ना बाजार जाना हराम, ना बकरी चराना हराम, ना खेती करना हराम, कुछ भी नहीं। अगर हराम है तो क्या है? मस्जिद में आना हराम है। सवाल ये है कि जिस वक्त भी फतवा जिसने भी दिया, हमारे बड़ों ने ही दिया है, एक मरतबा इस पर गौर करें बैठ करके। और वजह क्या बयान करते हैं? वजह बयान करते हैं कि हालात अच्छे नहीं हैं। अच्छा, मस्जिद के हालात अच्छे नहीं हैं और बाजार के हालात अच्छे हो गए हैं। बाजार के हालात उससे ख़राब हैं, कॉलेज के हालात अच्छे हैं, उससे ज़्यादा ख़राब हैं। ट्रेन में अकेले सफ़र करती, हालात अच्छे हैं। तो समझ में नहीं आता कि मस्जिद के हालात कैसे ख़राब हैं और कॉलेज के और बाजार के और सब चीज़ के हालात अच्छे हैं। इस पर चाहे जितने बड़े आलिम ने फतवा दिया हो, बैठकर एक मरतबा इस पर गौर करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि हबीब मुस्तफ़ा के ज़माने में औरतें आती थी, दीन सीखती थी। अभी ये तकरीर हो रही है, ये तकरीर अगर औरत भी सुनती तो उसके ऊपर असरात होते कि नहीं होते? हमने उसके सुनने का कोई इंतज़ाम नहीं किया है, कोई इंतज़ाम नहीं किया। फतवा दे रखा है कि हराम है। मैंने एक बहुत बड़े आलिम से पूछा तो उन्होंने कहा कि हालात अच्छे नहीं हैं, और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में औरतें आती थी, लेकिन आज जिस तरीके से तुम लोग आ रही हो, अगर रसूल अकरम ये देख लेते तो इसको मना कर देते। ठीक है, नहीं मना किया उन्होंने। हज़रत आयशा को जो मालूम हो गया हालात ख़राब हैं, तो क्या हज़रत आयशा ने मना कर दिया? उन्होंने भी नहीं मना किया। इसमें लोगों ने गड़बड़ी पैदा कर दी। तो आप उस गड़बड़ी की इस्लाह करें, उस शरई मामले को ख़त्म नहीं करें। नहीं समझे बात मेरी? भाई मस्जिद में आने में आप कह रहे हैं कि हालात ख़राब हैं, हालात को सुधारने की फ़िक्र करें। ये फतवा दे देना कि औरत आ ही नहीं सकती, औरत का आना गुनाह है, मकरूह तहरीमी है। हम भी कहते हैं, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि औरतों की घर की नमाज मस्जिद की नमाज से अफजल है। एकदम सही हदीस है, एक दो नहीं कई हदीस है। आप भी ये फतवा दें। लेकिन ऐसे मौके पे जब हालात इतने ख़राब हो गए हैं, अगर जुमा में कुछ अल्लाह रसूल की बात हो जाती, जुमा ही होती है, तो कम से कम उनके सुनने का कोई इंतज़ाम किया जाए कि वो भी अल्लाह रसूल की बात सुने, तब उनको दीन की तालीम पहुँचेगी। तबलीगी जमात निकाले जमात तो उसके खिलाफ फतवा है, इधर अगर मस्जिद में आवे तो उसके खिलाफ फतवा है। अब बताइए दीन सीखे कहाँ? वो कॉलेज में दीन सिखाया नहीं जाता है। तो बुनियादी वजह क्या है कि दीन का इल्म ना होने की वजह से ये गैरों के साथ भागने का और शादी करने का मामला हो रहा है। इस पर उलमा को बैठकर संजीदगी से, मैं एक और मिसाल देता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की ज़ियारत पर सबका इत्तेफाक है कि जाना चाहिए, ज़ियारत करनी चाहिए, दरूद व सलाम पढ़ना चाहिए। लेकिन आपको मालूम है, जो लोग गए हैं जानते हैं, वहाँ पर भी बेशुमार लोग ऐसे हैं जो शिर्क करते हैं। करते नहीं करते हैं? करते हैं। कभी आपने फतवा नहीं दिया कि अब अल्लाह के रसूल की ज़ियारत, कब्र की ज़ियारत करना हराम है? तो वहाँ भी गड़बड़ी पैदा हुई है, उससे ज़्यादा गड़बड़ी पैदा हुई जो मस्जिद में हुई है।
है, उसका फतवा नहीं दिया, तो क्यों उसकी इस्लाह करो। अगर गड़बड़ी हो रही है तो इस्लाह करें, लेकिन दीनी मामले में इस्लाह करने की फिक्र करनी चाहिए। हमारी ये बात उलमा एकदम नहीं सुनना चाहते हैं, ना हमारी बात को पसंद करते हैं। बहरहाल हमने जो बात कही है कुरान हदीस की रोशनी में कही है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, नसाई शरीफ की सही रवायत है कि अगर अल्लाह की बंदियां तुमसे मस्जिद जाने की इजाजत चाहें तो कतई तुमको मना करने का अख्तियार नहीं है। न शौहर को अख्तियार है, न बाप को अख्तियार है, न बड़े भैया को अख्तियार है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, ये बात भी है कि ये समझ कर मस्जिद में आने का कोई फायदा नहीं कि हमको नमाज जमात से पढ़ने का कोई सवाब मिलेगा। सवाब कुछ नहीं मिलता है। जो सवाब उनको अपने घर में है वो जमात से ज्यादा है। लेकिन ऐसे हालात में जब इस्लाह की जरूरत है तो इस पर नजरसानी की जरूरत है। दूसरी बुनियादी वजह क्या है कि सोशल मीडिया पर आ रहा है, आप खुद जान रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं, यूट्यूब आ रहे हैं, और उनके खुद यूट्यूब आ रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं कि साहब बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है, पूरी तंजीम है कि मुस्लिम लड़कियों को फंसाया जाए, पैसे का ऑफर किया जाए, जॉब का ऑफर किया जाए और उनको कन्वर्ट किया जाए और इस्लाम धर्म से ला करके दूसरे धर्म में दाखिल किया जाए। ठीक है, साजिश है उनकी। उस साजिश का तुम्हारे पास क्या हल है? तुम्हारे पास क्या हल है? भाई आप साजिश समझ गए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि मेरा ये प्रोग्राम है। उसके बावजूद डॉक्टर को ये बात मालूम हो जाए कि साहब मर्द ऐसा है, और फिर बोले कि भैया हमारे पास जो है ना इसकी दवा नहीं है। ये कौन से डॉक्टर आप हैं भाई? डॉक्टर के लिए तो ये बड़ा आसान काम हो जाता है कि मर्द मालूम हो जाए। पहले हम भी यही कहते हैं कि भाई ये मालूम हो जाए कि मर्द क्या है, उसके बाद उसका इलाज आसान है। भाई उनकी साजिश हो गई है, उन्होंने साजिश की है, ऐलान कर रहे हैं हमने साजिश की है, हम कोशिश करेंगे। आप उसका तोड़ निकालिए। उसका तोड़ वही था जो पहली बात मैंने कही कि आप इल्म दीन सिखाते हर लिहाज से, तो वो उसका तोड़ होता है।